Namaskar, respected director, Dr. Joshi sir, team of HRDC department, all the friends, and my dear coordinator. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जेंडर क्या है, जेंडर रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है और हमारी इंडियन सोसाइटी में जेंडर का कॉन्सेप्ट कैसे दिखाई देता है। ये बात हमने लास्ट पीरियड में देखी थी। We will discuss about the education and gender in this period. We will also discuss about the gender perspective in Corona. So friend, welcome in this lecture and we will start our presentation. If we discuss about the education and gender education, we should know about the concept of education. When we talk about the education, there are basic three components in education. One is right to education, right to within education, and rights through education. So three components are important for gender. Earlier we discussed about the gender. So men, women, third gender, etc. have a right to education. If we talk in our Constitution, Act 2002, inserted Article 21A in the Constitution of India provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years. So education is a fundamental right. The right of children to free and compulsory education, RTE Act 2009, means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable equality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So friend, education is the right of every child in the world. Why it is important? Because it develops their spiritual talents, their abilities, and also the education teach them respect themselves and other people and nature also. So with education, gender get dignity, equality, potential, knowledge, values, and behavior. This way, the education is very important. If we talk about right within education, there are basic concept and main focus in the gender equality. When we talk about the equality, no discrimination in education opportunity, and main focus is on teaching learning method, subject choice, assessment modes, management of peer relations, learning outcomes, etc. So right within education is a functional for a society because it reveals to equality and equal treatment. So it is very important in our society. So equality and gender equality is a human right when we born. Earlier we said that in our constitution give us a power of equal
Universal Declarations of Human Rights also says the equality. So equality is that women and men have equal condition for realizing their full human rights and for contributing to the benefiting from economic, social, cultural, and political development. It starts with equal values of girls and boys, and it is very important in any society because gender equality is a goal of national development. It's a goal of equal opportunity, equal treatment, and it should be in every society. If we think about the empowerment, if we think about the development, we should give the equal power and position in a society. When we talk about the approaches to gender equality, we can discuss about all approaches in detail also, but within a time period, we will not discuss in detail about the policy approaches of gender equality. But we have a welfare approach, then equity approach, anti-poverty approach, efficiency approach, and empowerment and gender mainstreaming approach. So this approach is not separate, but एक में दूसरा approach तो आ जाता है. So we went about empowerment. We talk about the empowerment. Efficiency is there. Gender mainstreaming is there. So friend, equality is important, but what is the purpose of gender equality? So it gives us opportunity, right, and obligation in all spheres of life. It is a very wild concept, but we should discuss about this point. If we know about the kinds of equality, there are different type of equality. सिविल इक्वालिटी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो राइट दिया है वो सिविल इक्वालिटी की बात है. हम जो सोसाइटी में रहते हैं, जो कास्ट है, हमारा फैमिली है, इसमें हमको सोशल इक्वालिटी मिलती है. पब्लिक लाइफ में हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, एजुकेशन में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, इकोनॉमिक लाइफ में हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है और पॉलिटिक्स में क्या है. So there are different type of equality in our society, but there is a difference between gender equality and gender equity. Equality के बारे में तो हमने सोच लिया कि it is based on the idea of equality and equal opportunity. But what is equity? Equity. Gender equity denotes equivalence of right outcome of men and women. Gender के बारे में यदि हम सोचते हैं तो यह बहुत ही अच्छी तरह से हमको पता होना चाहिए. मानो हमारी क्लास में being a teacher हम सभी को एक समान हमको लगता है. But when we talk about the equity, मानो हमें घर में, स्कूल में, कॉलेज में कुछ काम करना है, एक अच्छा सा चार्ट लगाना है. हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, एक लंबा है, एक मिडिल हाइट का है, एक की हाइट कम है. तीनों को हम एक ही काम देते हैं, तीनों को हम एक ही प्रकार का उनको जो मीन्स है वो देते हैं, मगर उनका लक्ष्य जो है कि वहां पोस्टर लगाना है. तीनों को स्टूल भी दे देते हैं, मगर जो लंबा है उनको स्टूल की जरूरत नहीं है. जिसकी हाइट सबसे कम है उनको बड़े स्टूल की जरूरत है. सो
equity, it's related with a different need, different preferences and interests. So there are difference between equity and equality. स्टेप्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी के बारे में यदि हम सोचें तो हम टीचर हैं, टीचर के रोल में हमको जेंडर एनालिसिस करना है, उनके लिए जो मैकेनिज्म है वो एस्टैब्लिश करनी है और बाद में हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोच सकते हैं. फ्रेंड्स, if we talk about why gender equality is important in our society and why it is important in education also. In a public life, for a nation, gender equality saves lives. At the 2005 World Conference of Disaster Reduction, experts discuss about the gender equality plays very important role in climate change, natural disaster, in the position of a woman and protection of a right. It results in better healthcare. Generally, we can see in our family and society also, women receive worse medical care than men. There are many reasons for this: lack of education, lower income, medical research, medical mind, etc. हमारे फैमिली में यदि हम देखें तो विमेन को 103 टेम्परेचर होता है, तो अभी वो नहीं बताती क्योंकि उनको लगता है कि यदि मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरे फैमिली का क्या होता है. मगर बेटर हेल्थ केयर के लिए जेंडर इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट. इट हेल्प्स बिजनेस ऑल्सो. हाउ इट हेल्प्स बिजनेस? एम्पावरमेंट, create awareness, create confidence, money, resources, etc. So university education is important for a women. They can get good economic condition, good job, and increase women participation in all economic activities. Our GDP will definitely increase. If we talk about the children, our health care, when women make their own reproductive choice, they provide better care of their children. They do have with income optimum equal to men. Mother can offer education, health care, very good food, healthy food. So this will help their economic life. When we talk, it leads to better legal protection. It leads to better racial equality. Gender equality and race equality both are closely linked. With an issue like the gender pay gap, race play a big role. White and Asian, black and white women, we can see that gender equality consider race as a factor. It improves race equality at the same time. It reduces poverty, it reduces human trafficking, and it can lead to peace also. So in a society, there are so many benefits for a gender equality. If we talk about the education of a women, there is a small picture, a small video. We can see Beti Padhao, Beti Bachao. We will discuss about this point also. This is a very short film.
धोखे नहीं डाले अभी तक। संभाल के पाठशाला जाना। हाँ माँ। और ये टिफिन खा लेना, भूलना मत। अच्छा, बाय बाय। बाय बेटा। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे भी पाठशाला जाना है। सुनिए, क्या है? हमारी मीना ना पाठशाला जाना चाहती है। हमारी बेटी पढ़ना चाहती है। क्या करेगी पढ़ लिख के? आखिर में इसको भी तो चूल्हा चौका ही करना है तेरी तरह। हमारी मीना ना पाठशाला जाना चाहती है। हमारी बेटी पढ़ना चाहती है। क्या करेगी पढ़ लिख के? आखिर में इसको भी तो चूल्हा चौका ही करना है। मीना, ये क्या किया बेटा? मुझे भी पढ़ना है। मुझे भी पाठशाला जाना है। हाँ बेटी, तू भी पाठशाला जाएगी, जरूर जाएगी। देखती हूँ तुझे पढ़ने से कौन रोकता है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो फ्रेंड्स, आपने एक छोटी सी वीडियो में देखा कि हर लड़की के मन में एजुकेशन लेना चाहिए, वो है। यदि हम देखें कि हमारी सोसाइटी में ये सभी क्यों आया है, कैसे आया है, तो इसके लिए एजुकेशन में जेंडर का पर्सपेक्ट होना चाहिए। यदि हम देखते हैं कि ये पर्सपेक्टिव कैसे आया, तो इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? इसके लिए हमारे नेशन ने भी बताया है। हमारे यहाँ 2001 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट आई, और ये जो एम्पावरमेंट की पॉलिसी थी, इसमें अलग अलग सेक्शन थे, उनका ऑब्जेक्टिव था। और ये जो ऑब्जेक्टिव था, इसमें वन ऑब्जेक्टिव वाज एजुकेशन। इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था कि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल विल बी एंश्योर। ये बताया था, ये होना चाहिए, मगर इसमें आपने देखा कि हमारा जो माइंडसेट है ने, वो कैसा है कि फीमेल का एजुकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें वो ही बताया था कि स्पेशल मेजर will be take to eliminate discrimination, universalization of education to be taken, illiteracy will remove, create a gender sensitizations, इसके बारे में हम अभी दिखाएंगे, in our education system, increase enrollment, और हमारे यहाँ जो एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, वो हम ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, टेक्निकल स्किल, वो मेल और फीमेल
दोनों के लिए कैसे बढ़ाई, वो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ विमेन एम्पावरमेंट में बताया था। इसमें वो ही बताया था कि मेल और फीमेल दोनों में जेंडर गैप जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में है वो कैसे डिक्रीज होना चाहिए। सेक्टोरल टाइम टारगेट in exiting policy will be achieved with a special focus on girl and women, particular those belonging to weaker section, including scheduled caste, scheduled tribe, other backward class, minorities, etc. यदि हमारे यूजीसी की वेबसाइट पे देखो तो देयर आर सो मैनी जो हमारे यहाँ है कि स्कीम है पर्टिकुलर इन विमेन के बारे में है। तो यदि हम वो देख लेंगे तो हमको मालूम आ जाएगा कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको ए दिखाना है। सो विमेन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज वेरी important in the way of our society. When we talk about the society, we can see the job opportunity, we can see the educational achievement, and we can see the different type, different role, different responsibility, etc. When we talk about society, when we talk about the role model of a society, it is very important to say how gender education in our society is important. And being a teacher, why we should know the importance of education to develop an understanding of how our individual identities and self-concept structure our interaction. How we can understand the gender shape, how we can understand the structure from the bias of power and resources allocation, and how structure of our society create gender standards and organizational rule and its expectations. So in our society, education is very important. If we talk about our Millennium Development Goals, friends, you can see in the slide, there are 8 main goals of our Millennium Development Goal. One is eradicate extreme poverty, but if we see second and third goal, it is related to our topic. Second goal is achieve universal primary education, and third is promote gender equality and empower women. So 2 and third goal is very important. But if we see in our classroom, being a teacher, we should teach and we should learn also gender perspective in our education. If we see in our register, there are number of girls, number of boys, our attitude, our behavior, student attitude, level of confidence, minority presentation, our sitting arrangement, subject wise preference, etc. मानो हम क्लास में सभी को बिठाते हैं तो बॉयज दिस साइड, गर्ल्स दिस साइड. व्हाई वी कैन नॉट सीट इन टुगेदर? हमको कुछ फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, गेस्ट आते हैं तो हम अच्छे से
लड़की को देख के बताते हैं कल साड़ी पहन के आया, गेस्ट को आपको बुके देना है। जो बॉयज होते हैं उनको बताते हैं चल बैनर लगाओ, ऐसा करो, हाइट पे चढ़ना है, फोटोग्राफी करना है, वो बॉयज को देते हैं। तो बीइंग अ टीचर हम भी हमारे क्लासरूम में जेंडर इक्वालिटी नहीं रखते। हमें गर्ल्स और बॉयज दोनों की एक्टिविटीज के बारे में जेंडर न्यूट्रल एक्टिविटीज सोचनी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, यदि हम देखेंगे कि हमारा यूजीसी का जो रिकॉर्ड है और यूजीसी की वेबसाइट पर आप देखेंगे पूरा यूजीसी का रिपोर्ट हर साल आता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी वे लोग रखते हैं। इसमें पूरा एक कंपोनेंट है जेंडर इक्विटी इन हायर एजुकेशन एंड यू शुड रीड इट। इसमें एजुकेशन, पर्टिकुलर हायर एजुकेशन को जेंडर और इक्वालिटी के बारे में, अपलिफ्टमेंट के बारे में पूरा आइडियाज दिया है। इसमें टोटल विमेन कॉलेज कितनी है, मेल फीमेल रेशियो क्या है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट क्या है, हायर एजुकेशन में लेवल वाइज स्टूडेंट क्या है, हायर एजुकेशन में प्रोग्राम वाइज स्टूडेंट मेल फीमेल कितने हैं, वहाँ स्ट्रीम वाइज हाउ मच द बॉयज एंड हाउ मच द गर्ल्स, पीएचडी कितने हैं, एमफिल कितने हैं, डिप्लोमा कितने हैं, पूरा रिपोर्ट में आप 15-20 पेज तक ये पढ़ सकते हैं। मगर ये सभी स्टेटिस्टिकल हमको यदि पेपर लिखना है तो हम इसमें डाल सकते हैं। अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो रोल ऑफ अ टीचर एजुकेशन के बारे में क्या है। तो यदि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको बोलते हैं हम GER, इन हायर एजुकेशन इन इंडिया is 26.3, which is calculated for 18 to 23 year age group. Male population is 26.3 and female is 26.4. So it is a change attitude and it is a good. यदि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताएं तो मानो गुजरात है, तो गुजरात में विमेन एजुकेशन के बारे में फ्री एजुकेशन, हॉस्टल एकोमोडेशन, स्कॉलरशिप, SC ST OBC विकल्प सेक्शन सभी को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वहां से शुरू होके हमारा जो अचीवमेंट है वो यदि हम देखें तो विमेन ने इसमें एफिशिएंसी दिखाई है। यूनिवर्सिटी रैंकर देखो आप तो कई विमेन है, मगर करुणा चन्ना का स्टडी है, सुमा चिटनिस का स्टडी है, वो बताते हैं कि व्हेन वी सिलेक्ट अ डिसिप्लिन अदरवाइज स्ट्रीम वाइज एनरोलमेंट देयर इज अ डिफरेंस। आर्ट्स कोर्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हम देखें तो 46.96 आर मेल एंड वीमेन आर मोर 53.3। साइंस में देखें तो 49 आर मेल एंड 51% आर फीमेल। कॉमर्स में देखें तो 51.2 फीमेल एनरोलमेंट इज 48.8। तो फैकल्टीज और डिसिप्लिन स्ट्रीम जब चेंज होती है तो क्या रिजल्ट होता है। इंजीनियरिंग के बारे में देखें तो उल्टा सा होता है, वहां मेडिकल साइंस में देखे, मैनेजमेंट स्ट्रीम में देखे, हर जगह अलग सी बात है। मानो वेटरनरी साइंस है तो वेटरनरी साइंस में लड़कियां ज्यादा नहीं जाती थी, अभी वहां जाने लगी है। कई फैकल्टी ऐसी है वहां ज्यादातर विमेन जाती नहीं थी, मगर अभी उनके लिए द्वार ओपन हुआ है। तो ये सभी के लिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, और विभूति पटेल उनका बहुत अच्छा स्टडी,
gender in economics, gender in politics, gender in our public life. If we can see the data, there is a difference and disparities. But education is important for contribution to our economic growth and competitiveness. Improvement in social equity and poverty में भी इसमें फर्क होता है. So there is a inequality, disparities in education for access, retention, success, career choice, career opportunity. Last पीरियड में हमने देखा था, और अभी भी छोटी सी स्लाइड में जो वीडियो थी इसमें भी हमने देखा कि हमारे यहाँ कैरियर चॉइस, कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आज भी हमारे घर में जेंडर इनइक्वालिटीज है. वो हमारा माइंडसेट अभी भी चेंज नहीं हुआ. और यदि हम हायर एजुकेशन का फिगर देखें, गुजरात, इंडिया, तो हर एक स्टेट में रूरल और अर्बन डिस्पैरिटीज है. और यूजीसी का जो डेटा है इसमें भी आप देख सकते हैं. रिलीजियस ग्रुप सेंसस के रिपोर्ट में देखो तो पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप और एजुकेशन इनके कोरिलेशन है. इकोनॉमिक क्लास, हायर क्लास में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे जाना है, आपको जाना है, तो हमारे पास इतने डॉलर नहीं होंगे. इनइक्वालिटीज इन इकोनॉमिक क्लास, हमारी जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है और ग्रांटेड कॉलेजेस है, तो सेल्फ फाइनेंस में कौन जाते हैं, ग्रांटेड में कौन जाते हैं, इसको हम देखें तो हमको मालूम हो जाता है. इनइक्वालिटीज बाय कास्ट, आज हमारी सोसाइटी में कई ग्रुप ऐसे हैं कि उनकी फर्स्ट जनरेशन हायर एजुकेशन ले रही है. मानो हमारे पास एक दो स्टूडेंट ऐसे है कि उन्होंने बोला मैडम मेरी जो है कम्युनिटी इसमें मैं पहली पीएचडी होने वाली हूँ. तो फर्स्ट जनरेशन हायर एजुकेशन ले रही है. अदरवाइज सम कास्ट हैव नो राइट. बंधारण ने दिया है मगर सोशली वीमेन को हायर एजुकेशन लेना नहीं चाहिए, ऐसा उनका सोशल नॉर्म्स. सोशल ग्रुप यदि हम देखें तो इसमें भी इनइक्वालिटीज है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ये जो इनइक्वालिटीज है उनको हमें दूर करनी. तो यूजीसी ने भी बताया है पूरा जेंडर सेंसिटाइज के बारे में. यदि हम देखें तो यूजीसी में जो भी बताया है, मानो हमारे यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल है, विमेन के बारे में प्रोग्राम करना है, CWDC है, WDC है. तो हमारे डिपार्टमेंट में हम हर साल जेंडर रिसोर्स सेंटर के साथ ये जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं. हमें मेल और फीमेल दोनों को क्लास में ये पढ़ाना है कि इधर है आप विमेन नहीं है, आप मैन नहीं है, मगर आप स्टूडेंट है. तो हमारी लैंग्वेज में भी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए. जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या है? इट्स प्रिसाइड ओवर जेंडर सेंसिटिविटी, द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर by raising awareness of gender equality. This can be achieved by conducting various sensitizations, campaign, training center, workshop, program, etc. कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि तो जेंडर का प्रोग्राम है ना, विमेन जाएंगी. विमेन को नहीं, दोनों को करनी पड़ेगी. क्योंकि मेल के पर्सपेक्टिव से फीमेल को देखे, फीमेल के पर्सपेक्टिव से मेल को देखे तो अलग सा एक मेन स्ट्रीम डेवलप होता है. सो जेंडर अवेयरनेस
is very important in our society, in our education, so we can understand the gender disparities and gender issues. Otherwise सबको तो मालूम ही नहीं होगा कि ये तो लड़कियों की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. It also helps in a society for a man and women to know their role in a development process, and it also affect the relations. बाद में ऐसा नहीं होगा कि ये सिटी बजाती है, ऐसे करता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है. वो सेंसिटिव होना चाहिए. मगर बीइंग अ टीचर हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले करना है हमारा सिलेबस, हमारा करिकुलम, हमारा टेक्स्ट. बचपन से हमारे टेक्स्ट में यह सिखाया जाता है कि भाई बॉल से खेलता है, बहन मम्मी को रसोड़ा में हेल्प करती है, किचन में हेल्प करती है. तो उनका माइंडसेट, उनका सोशलाइजेशन बचपन से हम ऐसे करते हैं. तो हमारी जो टेक्स्ट है, हमारा जो सिलेबस है, हमारी जो बुक है, हमारा जो लेसन है, हमारा जो इंटरेक्शन है, वो स्टूडेंट के साथ जेंडर बायस वाला न होना चाहिए. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को जेंडर फ्रेंडली उनके साथ बर्ताव करना चाहिए. नीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ मीटिंग जेंडर सेंसिटिविटी एंड गाइडेंस. गवर्नमेंट का, एनजीओ का भी रोल है कि हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करें. उनके लिए लैंग्वेज जो है हमारी, क्योंकि कई साल से हमने ये सोचा था कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो मैन ओरिएंटेड है. हमारे यहाँ चेयरमैन शब्द बुलाया जाता था, अभी हम बोलते हैं चेयर पर्सन, क्योंकि चेयर मैन ही होना चाहिए, पोस्ट मैन ही होना चाहिए, फायर मैन ही होना चाहिए, राष्ट्रपति. अभी देखो चेंज आया, इंडिया में हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी विमेन हुई है, चेयरपर्सन भी हुई है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी विमेन थी, लोकसभा के स्पीकर भी थी. तो उनके लिए क्या होना चाहिए? जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इन आवर पॉलिसी, इन आवर प्रोग्राम. जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए. यदि हम देखते हैं टीचर को, तो टीचर का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जेंडर सेंसिटिविटी के लिए कंपलसरी होना चाहिए. अदरवाइज उनका भी माइंडसेट उनके सोशलाइजेशन के मुताबिक होगा और सोसाइटी को उनका बेनिफिट्स नहीं होगा. विमेन का एजुकेशन प्रमोट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी में से जो जेंडर बेस्ड इश्यूज है वो खत्म हो जाते हैं. मगर इनके लिए पहले हमें सेंसिटिविटी क्रिएट करनी है. तो बीइंग अ टीचर फ्रेंड, व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू. हमारा रोल क्या है? जब बच्चा घर से निकलता है तो पहले स्कूल में आता है, कॉलेज में आता है. तो स्कूल और कॉलेज देखो कि उनकी जो ग्रोन अप पीरियड है, 3 साल से लेकर 25 ईयर तक वो एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और वो बहुत बड़ी उम्र है. हम लोग उनके सेकंड पेरेंट्स हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु. तो बीइंग अ टीचर, स्टूडेंट के साथ या मेल है या फीमेल है, ऐसा बायस हमें नहीं रखना चाहिए. जेंडर इक्वालिटी वो हमारे सिलेबस में हो, हमारे अचीवमेंट में हो, हमारी रोज की जो एक्टिविटीज है इसमें जेंडर बायस नहीं रखना चाहिए. हमारे टेक्स्ट बुक में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए. मगर क्या नहीं करना चाहिए?
तो बॉयज अच्छे हैं, बॉयज ये काम कर सकते हैं, बॉयज ये करता है, गर्ल्स का प्रेज करना चाहिए, गर्ल्स को ऐसा रखना चाहिए, आप लोगों को इंटरेक्शन नहीं करना है, आप लोग भाग जाएंगे, नहीं होना चाहिए। वो हमारे स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट के साथ हम कैसे बिहेव करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, there are different type of activities which is related with education and ये हमें करना चाहिए। अभी अभी हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ कई बाबत जुड़ी हुई है। यदि हम देखें तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो अगले साल से इंट्रोड्यूस होगी, इसके लिए काफी डिस्कशन भी हो रहा है। तो इसमें ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से है, विमेन का एजुकेशन नहीं, मैन का एजुकेशन नहीं, पर हमारे देश के युवाओं का एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, फाइनेंशियल सस्टेनेबल हो जाए ऐसा एजुकेशन। और यह पॉलिसी में चॉइस बेस है। पहले क्या था कि होम साइंस ये किसका है, तो होम साइंस महिलाओं का है। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी सब फैकल्टी में ये लोग आएंगे, सभी देखेंगे और काम करेंगे। तो ये एजुकेशन और जेंडर, उनके लिए यूजीसी का रिपोर्ट है, करुणा चन्ना का कई पेपर है, आप पढ़ सकते हैं और इनके बारे में काफी कुछ काम हुआ है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो भी हम 5-10 मिनट में उनका डिस्कशन करेंगे। और वो जो पॉइंट है वो कोरोना का है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए WHO ने क्या किया है, यह सभी हम लोग जानते हैं। मगर यदि हम देखें कि हमारी सोसाइटी में कोरोना के लिए जेंडर का जो पर्सपेक्टिव है वो देखना है, तो कैसे देख सकते हैं? तो कोरोना वायरस ऐसा वायरस है कि जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। इट इज जेंडर न्यूट्रल वायरस, महिलाओं को होता है, फीमेल को होता है, पुरुष को नहीं होता है। हर एक रिलीजन में, हर एक कम्युनिटी में, सेलिब्रिटीज में है और डिसेबिलिटीज में भी है। मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल and it's a very very pandemic situation in all over the world. इनकी हिस्ट्री में हम नहीं जाते, उनके फिगर में हम नहीं जाते, but for this there are two major function हुआ। एक लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमने सीख लिया कि स्टे एट होम, एंड ऑलमोस्ट स्टेट, ऑलमोस्ट कंट्री and our university also says stay at home। एक नई एजुकेशन सिस्टम इससे क्रिएट हुई, वर्क एट होम। पहले हम होम वर्क देते हैं, अभी वर्क एट होम हो गया। सो जेंडर एक्सपीरियंस इन COVID-19 it shapes by the intersection of inequalities of labor market, इंटर हाउस होल्ड पावर रिलेशन। स्टे एट होम में लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा कि महिलाओं का काम बढ़ गया, सभी लोग घर में थे, जो बच्चे बाहर खाते थे वो भी बंद हो गया, तो महिलाओं ने किचन में पूरी जमावट कर दी। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्निंग केयर। तो उनका केयर का, उनके स्ट्रेस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, शेल्टर होम, पर्सनल केयर, कई काफी उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। यदि हम देखें
कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स उनका एक जेंडर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हुआ। हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल में क्या हुआ, डॉक्टर नर्स दोनों थे, मेल थे फीमेल थे। डॉक्टर की जो ड्यूटी थी वो तो उन्होंने निभाई, नर्स की ड्यूटी थी वो भी महिलाओं ने निभाई। मगर जब वो घर आती थी तो आफ्टर द क्वारंटाइन पीरियड उनको उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब वो 15 दिन वहां जाती थी तो घर में पूरा नाश्ता बनाना, ये बनाना, सभी कुछ करके जाती थी। सो फ्रंट लाइन वॉरियर्स में महिला एज वेल एज पुरुष दोनों ने साथ मिलके काम किया। जो भी गुजर जाता था उनके लिए हम देखे, सफाई में देखे, सफाई कामगार में देखे, पुलिस में देखे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन वहां कई प्रॉब्लम होते थे, कई बाबतें होती थी, और यदि हम उनको अच्छी तरह से देखें तो कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस है वो फीमेल को अलग रहा और मेल को अलग रहा। मगर इनके लिए 5 स्टेप 5 एक्शन वो जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताया था। 1 इस कोरोना वायरस डिसीज, इसके रिस्पॉन्स के बारे में। केयर फॉर केयर गिवर्स, हमारे WHO ने बताया, हमारे नेशन में बताया कि महिला हमारी केयर करती है तो आप भी उनकी केयर करो। हमारी सोसाइटी में कई किस्से हमको मिला। हमारी एक पहचान वाली थी, उनको हस्बैंड को कोरोना हुआ तो मैंने उनको बताया कि आपको भी कोरोना टेस्ट करना चाहिए। कि नहीं मैं नहीं करूंगी। क्यों? यदि मुझको क्वारंटाइन करे, मुझको हॉस्पिटल में, मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा? तो उनकी केयर नहीं करनी चाहिए। घर में एक पेशेंट होता है ना कोरोना का तो महिला का काम बढ़ जाता है। सुबह में 6 महीने से देखो, चाय बनाने के साथ वो आयुर्वेद उकाला बनाना, गर्म पानी सभी को देना, विटामिन सी के लिए नींबू जूस देना, नारंगी जूस देना, कोरोना हुआ है तो उनके लिए राब बनाना, उनके लिए दवाई देना, सभी काम महिलाएं करती हैं। कई महिलाओं के साथ पुरुष ने भी काम शुरू किया लॉकडाउन के टाइम, वो बहुत ही अच्छा था, एप्रिशिएट करने वाला था। और आप लोग भी पढ़े लिखे हैं तो आपने भी हमारी जो केयर गिवर्स है फैमिली में उनको सपोर्ट दिया होगा। मगर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, उनका डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। एट दैट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर वायलेंस throughout the COVID-19. Maintain core health and education service and system. Women का जो रोल है, women का जो राइट है, उनको हमको सपोर्ट देना है, इनके लिए जो इंफॉर्मेशन है, उनके लिए जो डेटा है, वो सभी करना है। So at the time of COVID-19, WHO ने स्पेशल गाइडलाइन निकाली और ये गाइडलाइन में ये बताया कि हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस हो, सफाई कामदार हो, जो भी हो, उनके साथ हमें रहना है, उनको अपॉर्चुनिटी देना है, उनकी केयर करना है, क्योंकि उनके हेल्थ पे उनकी इम्पैक्ट होती है। हमारा जो घर का काम है वो घर का काम हम अनपेड हाउस होल्ड वर्क करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कोरोना COVID-19, एट द लॉकडाउन, यदि जेंडर और विमेन के पॉइंट से दिखा जाए तो बहुत ही पैसादार लोग थे। इसमें भी घर का नौकर नहीं था, इसमें भी हमारा कुक नहीं था,
So at that time, women did a wonderful job with a family support. उन्होंने YouTube में देख देख के पूरी वानगी बना दी। बच्चों को होटल में नहीं मिलता था तो होटल वाला घर में बनाया, उनका सभी काम अच्छी तरह से करवाया, मगर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। उनको एक्स्ट्रा मनी नहीं मिले, क्योंकि वो काम वाली भी थी, वो बर्तन वाली भी थी, वो कुक भी थी, वो होम मैनेजर भी थी, बच्चों को भी संभालती थी, मल्टीपल रोल। और उनको क्या मिला? कई जगह तो वायलेंस भी बढ़ गया, उनके लिए इकोनॉमिक हार्डशिप हुई, क्योंकि कहां से उनको इनकम मिलती थी? फैमिली की इनकम जो थी, अपने आदमी की जो इनकम थी, उनका बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हुआ। विभूति पटेल का ईपीडब्ल्यू में एक आर्टिकल है, वो हमको पढ़ना ही चाहिए। उन्होंने बताया था कि कोविड-19 से वीमेन की इकोनॉमिक जो कंडीशन है, इसमें क्या फर्क आया है। नॉट ओनली वीमेन, मैन की कंडीशन में भी चेंज आया है। Not only men and women in Gujarat and India, but all over the world. COVID-19 is depressing global economic growth and causes mass unemployment, especially among women. अभी अभी मैंने 11 बजे न्यूज देखा था, तो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम अभी चेंज हो रही है। वर्क टू होम से कई फैक्ट्रिया, कई लेबर अभी विदाउट जॉब हो गए। इसमें वीमेन की परिस्थिति है, वो वल्नरेबल है, बिकॉज उनकी जॉब नहीं। जेंडर इनइक्वालिटीज हाउस होल्ड डिवीजन, एजुकेशन, हेल्थ केयर में दिखाई देती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ वो माइग्रेट लेबर का हुआ। उनका एक अलग सा लेक्चर होना चाहिए। जो लेबर माइग्रेट हुए वो अपने गांव में चले, गांव की महिलाओं का क्या हुआ? जो लेबर माइग्रेट हुए उनके साथ उनकी प्रेग्नेंट वाइफ भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, चल के कितने ही किलोमीटर चले। जो डिसेबल थी, जो रेफ्यूजी थी, उनकी यदि हालत देखे तो बहुत ही कंडीशन एक अलग थी। मगर एट दैट टाइम फैमिली में जो हुआ, मेल और फीमेल दोनों को घर में रहने पड़ते थे, मगर बच्चे को पढ़ना था, ऑनलाइन एजुकेशन लेना था, तो उनके लिए क्या होता वो हम यह छोटी सी जो हमारी मूवी है इसमें देखेंगे।
દીપમ અમે બેટા અવાજ ને બધું આવતું હશે કારણ કે ફટાફટ જાય છે. तो फ्रेंड, एक छोटी सी फिल्म में हमने देखा और ये एक्सपीरियंस हमारा भी है कि हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो लड़कियां बताती है मैडम 10 बजे मत रखो ना क्योंकि हमको कुकिंग करना है, हमको ससुराल में जाना है. यदि हम 1 बजे रखें तो वो फ्री होते हैं. मगर एट द टाइम ऑफ दिस पीरियड उनके ससुराल वाले, उनके मायके वाले, उनके पेरेंट्स वो बताते हैं कि ये तो हो जाएगा, आप पढ़ो, मगर घर के काम के साथ. तो हमारे फैमिली में जो अपेक्षाएं होती है वो किन के लिए होती है? तो महिलाओं के लिए होती है. महिलाओं यदि ऐसे बताएं तो क्या होता है, कैसे होता है? मगर इसके लिए जो पाथवेज थिंकिंग ऑफ पेंडामेंटल एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में यह हम देखे पूरा बिल. तो कोरोना में क्या हुआ? तो सबसे पहले ये हुआ कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी रिलेटेड स्ट्रेस. डियर फ्रेंड्स, जो लोग हर रोज जाके अपनी कमाई करते थे, वो विमेन, वो मैन, उनकी हालत अब देखो. मनी ही नहीं है उनके पास, खाने का नहीं है. उनकी हालत बहुत ही ग्लोबल लेवल पे. अमेरिका में पहले जितनी गरीबी नहीं थी वो अभी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है. तो भारत की तो क्या बात करें. जो क्वारंटाइन रहते हैं और सोशली आइसोलेशन है, उनका यदि हम जेंडर एनालिसिस करें तो एक बढ़िया सा स्टडी मिल जाएगा. क्योंकि क्वारंटाइन रहना मीन्स किसी को मिलना मत. फोन से हम बात कर सकते हैं मगर मिलना मत. मेरी हालत ये 15 दिन में हुई थी तो देखा था कि दुनिया क्या है, हम क्या है, हमारा हाउस का क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा रूम को क्या हमने देखा ही नहीं था इतनी बार. तो सोशल आइसोलेशन इज क्रिएट डिप्रेशन. और महिलाओं की एक आदत होती है कि किसी के साथ मिलना, उनके साथ बातें करना. डिजास्टर हो गया पूरे से, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, रिलेशन चेंज हो गया. हेल्थ सर्विस के बारे में पहले हमने सोचा ही नहीं था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी अच्छी होती है. आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाने लगे. डॉक्टर्स का क्या इम्पोर्टेंट है वो हम सोचने लगे. स्पेसिफिक सोर्स ऑफ वायलेंस है विमेन के लिए. उनकी जो एब्यूज की कैपेसिटी है वो भी, उनको अभी लगता है कि कब मैं इधर से निकल जाऊं. वायलेंस बढ़ गया है. उनकी हेल्थ के बारे में यदि हम सोचें तो अभी डायरेक्ट इंटरेक्शन कम हुआ है. टेलीफोनिक, सोशल मीडिया वो बढ़ गया है मगर डायरेक्ट इंटरेक्शन कम हो गया है. इसलिए कई लोग
डिप्रेशन में आ गए हैं। महिलाओं के लिए रक्षाबंधन में मानो उनके अपने फादर के जाना अभी कम हो गया, बंद हो गया। तो इस सिचुएशन में यदि हम कुछ सुनना चाहते हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरह से यह लिसन टू हर जो एक छोटी सी मूवी है वो बनाया है, यदि हम उनको देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि कैसे ये सिचुएशन विमेन के लिए आती है। Yeah, it's much cleaner now. Just So- look at it. And I think you should save this as well. Yeah. Did you know that an octopus has 3 hearts? Huh? And even if you cut out its head, it can still live for 1 more hour. Really? Yeah. God, that's so cool. So, listen, this is the best we can do remotely. Here. Sorry, was it too loud? Yes. Volume a little low, okay? I'm working. I have to make the lock room. Okay, guys, I'm back. I go towards the center. Yeah. Yeah, but send me the earlier presentations also. Are you done with that call? Upwards. Black coffee बना दो यार. हाँ? No, that's true, but the calibration of their system, if that's not right, you know, whatever we may do, it's not going to make a difference. Also, we No, I completely understand. practice that. But Then yeah, so it's no point, you know, even sending it to them. Why don't you first finish your food? Huh? And chew, please. I am. Yeah. Okay. So just send me the files. Yeah, you just send me the files and then I'll look at it after my son sleeps. Hello. हाँ? Can you speak? थोड़ा जोर से बोलिए. अब सखी संस्था से क्या क्या? नहीं नहीं, wrong number. Yeah. So Mama, I'm done. Now can I please wave? yes, but not for too long. Okay? My head really spins. Okay. हाँ. हेलो. मैंने कहा ना आपको कि रॉन्ग नंबर है. दीदी बात सुनो ना मेरी. मेरे को बहुत तकलीफ है. आना मतलब पहले भी थी, लगाम में भाभी बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा ये कर रहा है वो. मेरे को अभी डर लगा, बहुत तकलीफ है. हाँ, आई हेलो. आई. हेलो. सुनो. हाँ मैं आई वो देखिए. हेलो. हेलो. सुनिए. आप देखिए. हेलो. सुनिए. हेलो. हेलो, बोलना कौन है? मैं क्या है? बात करो ना. केमिस्ट. रॉन्ग नंबर. हेलो पुलिस स्टेशन. हाँ, बोलिए मैडम. जी देखिए, एक औरत उसको उसके हस्बैंड बहुत मार रहे हैं. उसका नाम बताइए, पता बताइए. हाँ, आप वहाँ पर जा सकते हैं क्या प्लीज? वो बहुत उनको अर्जेंट हेल्प चाहिए. मैं नंबर देती हूँ, प्लीज नोट करिए. नंबर बोलो. 790 317 3248. हाँ. हम दे देंगे ये नंबर वो हेल्पलाइन को. हाँ, अगर आप अभी किसी को भेज सकते हैं
इतने फोन आते हैं हमारे पास, किधर किधर जाएगा हम? हाँ? आई अंडरस्टैंड बट देखिए वो बहुत बुरी हालत में थी, वो चिल्ला रही थी, वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी था। ये तो मत सिखाओ मैडम कि हमारा काम हमको कैसे करना है, ठीक है? सर मैं आपको नहीं बता Yeah, no, just say that again, just the last line. I was listening. It's just that I didn't hear the last bit. You can just repeat it, right? Okay. No. We are not giving it to Chopra for sure. Mama, when will you be free? Just give me 20 minutes. I'll be done soon. Okay? So, अच्छा, looks like the mangoes have arrived. Huh? yeah, okay. No. नासिक का एक बंदा है, he's delivering. Yeah. हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ बोलो। मदद चाहिए दीदी मेरे को। हाँ मदद करो दीदी। सब कुछ बता। हाँ मैं बताती। धीरे धीरे। आज सुबह मैं दीदी खाना बनाने गई थी ना, 3 घंटा Get the door. पड़ी थी मैं। वापस आई ना दीदी तो इतना गुस्सा हो गया, क्या बताओ आपको, इतना मारा मेरे को, मेरा सर। Open the door ना। You do it. अरे हेलो, सुन रहे हो क्या दीदी? हाँ सुन रही हूँ। मेरे भी मारते थे, बहुत तकलीफ है दीदी। फ्रेंड्स, तो आपने इसमें देखा कि एक महिला एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, एट द टाइम ऑफ कोरोना, मल्टीपल रोल, मल्टीपल स्ट्रेस कैसे निभाई जाती है। मगर वी हैव टू स्पीक। पहले हम है, हमारी आइडेंटिटी है और फैमिली हमारे साथ है तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। मगर हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि वैसे माना जाता है कि नहीं, ये काम है वो तो महिला ही करेंगे, ये काम है वो तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले तो हम आज ही डिसाइड करेंगे, हमारा जो लेक्चर है इसमें से, कि हमारा जो क्लासरूम है, बीइंग अ टीचर, हम इंटरेक्शन करेंगे मगर दोनों के साथ। हम लैंग्वेज बोलेंगे मगर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। हम एनकरेज करेंगे मगर क्लास के स्टूडेंट को, नॉट मेल नॉट फीमेल। हम काम करें, ग्रुप में काम करें, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे। और हम जो भी काम करेंगे इसमें हमारा वॉइस होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी फिल्म हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। अभी हम जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ये नंदिता दास की जो मूवी है और हमारी मूवी यदि बताए तो सेम ही रहेगी। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, we are very thankful to our academic staff college. जब भी academic staff college में ऐसे लेक्चर होते हैं तो कई लोग बताते हैं कि जेंडर की बात करनी है, फेमिनिज्म की बात करनी है, तो वो एंटी मेल नहीं है। हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सभी को रिस्पेक्ट देना है, तो ही हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सकती है। और मेरे पास जो टाइम था इसमें हमने जो डिस्कशन किया, आज जो डिस्कशन किया, इसमें हमने एजुकेशन के जो 3 कंपोनेंट है, एजुकेशन में इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी का मीनिंग क्या है, इक्वालिटी कौन से प्रकार की होती है, why equality is important, एजुकेशन में इक्वालिटी कैसे लिया जा सकती है,
और उनके लिए महिला का एजुकेशन क्या जरूरत है और एजुकेशन एम्पावरमेंट के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। और कोरोना, तो कोरोना की जो सिचुएशन आई, इसमें महिला का रोल कैसे चेंज हो गया और जेंडर कोरिलेशन, जेंडर का रिलेशंस कैसे बदल गया। और हमारी सोसाइटी में यदि हम या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में इक्वालिटी और इक्विटी दोनों को साथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और हम सभी आगे बढ़ सकेंगे। सो थैंक यू HRDC डिपार्टमेंट, थैंक यू कोऑर्डिनेटर, एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड।